Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth online education. So in the last lecture we have completed our chapter number 2, and in the today's video we will start our chapter number 3, and the name of the chapter is In the Earliest Cities. So first of all we will learn about evidence of the city dwellers. So, earliest humans were hunter-gatherers. Slowly, they discovered farming and herding. With the discovery of farming, they had to settle down at one place for a long time. This led to development of earliest villages, which over time led to the development of cities. The timeline shows below shows this evolution of the earliest humans from hunting gathering to the city life. So हमने प्रीवियस लेक्चर सीरीज में ये देखा है कि अर्लीस्ट ह्यूमंस थे, ये सबसे पहले थे हंटर गैदरर्स। हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। धीरे धीरे उसने फार्मिंग एंड हर्डिंग एक्टिविटी को डिस्कवर किया, एंड धीरे धीरे ये सभी बन गए फार्मर एंड हर्डर। एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम अब ये सभी विलेजेस को डेवलप करने लगे, सिटीज एरिया को डेवलप करने लगे, बिल्डिंग्स और हाउसेस का डेवलपमेंट करने लगे। सो हम इवोल्यूशन की बात करें तो तीन टाइप का इवोल्यूशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्लीस्ट ह्यूमंस वर hunter and gatherers, then they became farmers and herders, and in the last they became city dwellers. सिटी dwellers का मीनिंग होता है कि हाउसेस बनाना, मीन्स सिटी एरिया में रहना। सो हंटर गैदरर्स के टाइम की बात करें तो अराउंड 2 million years ago hunter and gatherers present. Then around 12,000 years ago, means around 10,000 BCE, farmers and herders were in the this time period. And around 4,700 years ago we can see city dwellers. So, around 80 years ago, archaeologists discovered Harappa and realized that it was one of the oldest cities in the Indian subcontinent, developed around 4,700 years ago. So, 18 years ago, आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा साइट का डिस्कवर किया था, और आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंड टाइम के बात करें तो हड़प्पा सिटी का डेवलपमेंट हुआ था इन द 4,700 years ago. Then, since Harappa was the first site to be discovered, all other sites from the where similar buildings things were found are known as Harappan sites. So, हड़प्पा का डेवलपमेंट हुआ, हड़प्पा का डिस्कवरी हुआ, एंड धीरे धीरे कई सारे अदर सिटीज अदर साइट्स का भी डिस्कवरी हुआ, और बिल्डिंग्स और अदर थिंग्स का भी डिस्कवरी हुआ by the archaeologist in the Harappan cities. Then let's move to map activity. So locate and circle the following Indus Valley sites. Here we can see 6 different Indus Valley sites. First Harappa, second Mohenjo-daro, then Kalibangan, Chanhudaro, then Lothal and Dholavira. So locate in the map those sites. So we can see Harappa in the northern side in the Pakistan country, Mohenjo-daro also in the Pakistan, and Chanhudaro. These three sites are now located in the Pakistan. Then Kalibangan is located in the Rajasthan. Then Dholavira and Lothal are located in the Gujarat state. So we can see three sites, हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो एंड चान्हूदरो, ये सभी पाकिस्तान कंट्री में अभी अवेलेबल है। देन कालीबंगन, धोलावीरा एंड लोथल की बात करें, ये सभी इंडियन साइट्स है। देन यहाँ पर लोकेशन हम देख सकते हैं, हड़प्पा इज इन द पाकिस्तान, मोहेंजोदारो इज इन द पाकिस्तान, चान्हूदरो इज इन द पाकिस्तान ऑल्सो, देन कालीबंगन इज लोकेटेड इन द राजस्थान, लोथल is located in Gujarat, and Dholavira is located in Gujarat.
Then let's move to practice question 14.1. So on the map of the Indian subcontinent given below, mark any three Harappan sites in India and two sites in Pakistan. So आपकी supplementary books में पेज नंबर SB 25 में एक मैप दिया हुआ है एंड इस मैप में आपको हरप्पन साइट्स को लोकेट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हरप्पन साइट्स इन इंडिया की बात करें कालीबंगन, लोथल एंड धोलावीरा एंड हरप्पन साइट्स इन पाकिस्तान की बात करें तो हरप्पा एंड मोहेंजोदड़ो. सो वी कैन सी इन द मैप all the sites of the Harappan civilization. We can see Harappa is in the Pakistan. Mohenjo-daro also is in the Mohenjo-daro is in also is in the Pakistan. Then Kalibangan, Dholavira, and Lothal we can see in the India. Then let's move to our another topic, and it is key features of Harappan sites. So, as humans organized themselves into cities, they started living in newer and different ways as compared to farmers and herders. Here are some key features that explain the change. So, हमने देखा था कि ह्यूमंस जो अर्लीस्ट टाइम में थे ये फार्मिंग हर्डिंग करते थे, और उसके भी अर्लीस्ट टाइम की बात करें तो उसमें हंटिंग एंड गैदरिंग होता था. बट धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, सिटी ड्वेलर्स बने, मीन्स ह्यूमंस सिटी एरिया में रहने लगे और न्यू वेज में अपने लिविंग स्टाइल को बदला. तो अब हम देखते हैं कि हड़प्पन साइट्स के की फीचर्स क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ प्लान्ड सिटीज वर, मीन्स हड़प्पन साइट्स के सिटीज कैसे थे, उसका प्लानिंग किस तरीके से हुआ था. सो citadel and lower town. So Harappan sites were divided into two parts, a smaller, higher citadel and a lower, larger town. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हड़प्पन साइट्स की बात करें तो उसमें सिटीज में भी दो पार्ट होते थे. जो छोटा वाला पार्ट था एंड हाइट की बात करें तो ये हाइट में थोड़ा हायर एरिया पे था, तो इसको हम कहेंगे सिटाडेल. देन लोअर एरिया की बात करें, लोअर साइड पे थे लार्जर टाउन. सो यहाँ पर दो डिवीजन था. जो हायर एरिया पे था बट साइज में स्मॉल था उसको हम कहेंगे सीटाडेल, एंड जो लोअर एरिया में है बट साइज में बड़ा है उसको हम कहेंगे टाउन. Then let's move to second feature, and it is special buildings. So special buildings were constructed on the citadel. First of all, the great bath is watertight tank with steps leading down into the tank from two sides. Some cities like Mohenjo-daro, Lothal and Harappa had big storehouses. Then some cities like Kalibangan and Lothal had fire altars and their sacrifice may have been performed. Then well-baked bricks were laid in the interlocking pattern making the building stronger. So ये सभी एक फीचर्स है हड़प्पन साइट्स के, लाइक स्पेशल बिल्डिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट बाथ की बात करें तो सिटी में एक ग्रेट बाथ होता था जिसमें कोई एक स्पेशल ओकेशन पे सभी एक साथ यहाँ पर आते थे और क्लीनिंग प्रोसेस करते थे. देन हम बात करें कि इसमें दो साइड से आने जाने का रास्ता था, एक साइड से आने का एक साइड से जाने का, मीन्स एंटर एंड एग्जिट, ये भी फैसिलिटी थी इन द ग्रेट बाथ. देन हम बात करें मोहेंजोदारो, लोथल एंड हड़प्पा, ये तीन ऐसे सिटी हैं जहां पर स्टोर हाउसेस हमें मिले हैं. स्टोर हाउसेस इसीलिए होते थे फॉर द स्टोरिंग ऑफ द ग्रेन. Then some sites like Kalibangan, Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed. मीन्स फायर अल्टार्स का मीनिंग होता है जो हम गुजराती में बोलते हैं यज्ञ. तो यज्ञ ऐसा भी होता था इन द कालीबंगन एंड लोथल. देन वेल baked bricks were laid in the interlocking
पैटर्न मीन्स जो ब्रिक्स होती थी, ईंट होती थी, ये इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाई जाती थी, उसको अरेंज किया जाता था। सो इससे क्या होगा, बिल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है। एंड इन द पिक्चर वी कैन सी द ग्रेट बाथ एट मोहेंजोदारो। सो मोहेंजोदारो का ये एक पिक्चर है कि यहाँ पर हमें ग्रेट बाथ, एक बड़ा सा बाथ हमें देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो सीढ़ीज भी है और दो साइड्स भी है, यहाँ से हम एंटर हो सकते हैं और एग्जिट भी हो सकते हैं। Then let's move to third feature of the Harappan sites, and it is houses and drainage system. So one or two storehouses were built with rooms around courtyard. Then perhaps houses, drains and streets were planned and built at same time. Then covered drains were laid in the straight lines with the gentle slope to allow the flow of water. Then house drains were often connected to street drains. Smaller drains led to bigger ones. Inspection halls were provided at the regular intervals for the cleaning. So this is the houses and drainage system. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिस्टम की बात करें तो इसमें एक और दो स्टोर हाउस होते थे, और ये हाउसेस में हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा रूम्स होते हैं और एक कोर्ट यार्ड भी होता था। देन हम बात करें कि जो हाउसेस है, ड्रेन्स है, स्ट्रीट्स है, ये सभी एक ही टाइम पे बिल्ट हुआ था। ऐसा माना जाता है कि परहैप्स houses, drains and streets were planned and built at the same time। जो एविडेंस मिले है उसमें से हमें ये पता चलता है। Then covered drains were laid in the straight lines and with the gentle slope to allow the flow of water, means drainage system। जो वेस्ट वाटर है उसको बाहर निकालना, उसको हाउसेस से बाहर भेजना, तो ये प्रोसेस ड्रेनेज प्रोसेस। तो इसमें भी काफ़ी स्पेशलिटी थी। एक स्लोप होता था, तो स्लोप से क्या होगा कि जो वाटर फ्लो है ये कंटिन्यूसली चलता रहता था। देन हाउस ड्रेन्स वर ऑफन कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेन्स। जो हाउस ड्रेनेज सिस्टम होती थी ये स्ट्रीट ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड होती थी। मीन्स हम कह सकते हैं कि स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू बिगर वंस। मीन्स हाउसेस में जो ड्रेन्स होती थी ये स्मॉल होती थी और ये बिगर वंस मीन्स स्ट्रीट ड्रेन्स को कनेक्ट करती थी। Then inspection halls were provided at the regular intervals for the cleaning, and ड्रेनेज सिस्टम में हॉल्स, इंस्पेक्शन हॉल्स भी होते थे। और इससे क्या होता था कि जो कोई एक वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, तो उससे उसको हम आसानी से निकाल सकें, और ये एक क्लीनिंग प्रोसेस के लिए भी काफ़ी यूजफुल था। सो इन द पिक्चर वी कैन सी अ हाउस इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो इस टाइप का हाउस प्लानिंग होता था ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। Then let's move to next point, and it is how people lived in the Harappan civilization. So roles of the people in the Harappan civilization, we can see three type of people: rulers, scribes and craft person. So first of all, people had specific roles in the sites, cities, like rulers probably planned the construction of the special buildings in the sites. They may have sent people to get metal, precious stones and other things from the far off lands. So रूलर्स ये क्या करते थे, स्पेशल बिल्डिंग्स इसका कंस्ट्रक्शन करना और उसका प्लानिंग करना, ये मेन काम होता था रूलर्स का। देन ये क्या करते थे, पीपल को डिफरेंट विलेजेस में, डिफरेंट सिटीज़ में भेजते थे टू गेट मेटल, precious stone and other things from the far off lands. Then second people की बात करें, scribes. Scribes knew how to write. They prepared the seals and may have written on other materials to have not survived. So first of all, scribes का मीनिंग क्या होता है कि ये सभी लिखने का काम करते हैं। जैसे पोएट होते हैं, ये सभी लिखते हैं, इसी तरीके से स्क्राइब्स भी क्या करते हैं, ये सभी लिखने का काम करते हैं।
देन सेकंड कि दे प्रिपेयर्ड द सील्स एंड मे हैव रिटेन ऑन अदर मटेरियल्स दैट नॉट सर्वाइव्ड, मीन्स ये सभी लिखने का काम करते थे। सील्स मीन्स जो कोइंस होते हैं, जो कोई स्टोन होते हैं उसमें भी लिखने का काम करते थे। देन क्राफ्ट पर्सन की बात करें तो मेड ऑल काइंड्स ऑफ द थिंग्स इन देयर होम्स और इन वर्कशॉप्स। Some of the items found at Harappan sites indicate that they may have been made by specialists. सो क्राफ्ट पर्सन ये सभी क्या काम करते थे, ये सभी कोई ना कोई थिंग्स को बनाने का काम करते थे। लाइक ये सभी अपने घर पे या फिर वर्कशॉप पे काम करते थे और कुछ ना कुछ थिंग्स को बनाते थे। और हमें कई सारे एविडेंस मिले हैं और उससे हमें पता चलते हैं कि ये सभी काफ़ी स्पेशलिस्ट थे। मीन्स ये सभी काफ़ी अच्छी तरीके से बेटर वे से काम करते थे फॉर द क्राफ्टिंग ऑफ एनी थिंग्स। Then let's move to next point, and it is life in the cities. So what did the rulers do in the Harappan cities? Harappan cities में rulers क्या करते थे? So the rulers sent people to distant lands to get metals, precious stones and other things that they wanted. सो रूलर्स का मेन काम यही होता था कि जो पीपल है उसको डिफरेंट एरिया पे सेंड करना, और ये सभी डिफरेंट पीपल क्या करते थे, मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स को लाते थे फॉर द रूलर्स। Then second, what did the scribes do? So the scribes helped prepare the seals and perhaps wrote on other material that not they have not survived. So scribes का काम क्या होता था, ये सभी लिखने का काम करते थे। सील्स बनाते थे, मीन्स कॉइन्स बनाते थे, उस पर भी कुछ ना कुछ लिखते थे। और सेकंड, ये सभी अदर मटेरियल पे भी लिखते थे, बट ये सभी लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव नहीं हो पाए। देन व्हाट डिड द क्राफ्ट पर्सन डू? सो द क्राफ्ट पर्सन मेड ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स either in their homes or in the special workshop. So क्राफ्ट पर्सन का काम ये था कि कोई ना कोई थिंग्स को बनाना, अपने घर पे या फिर वर्कशॉप पे जाके ये सभी कुछ ना कुछ थिंग्स को बनाते थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टॉयज हैव बीन फाउंड? सो मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड फ्रॉम द हरप्पन सिटीज। Then let's move to another topic, and it is crafts in the Harappan sites. So let's look at the some of the objects that were made and found in the Harappan sites. So first of all, stone weights. So stone weights were made of jade, a kind of stone. They are carefully and precisely shaped. Then they were used to weigh precious stones और metals. So stone weights की बात करें, मीन्स ये सभी weighing प्रोसेस के लिए काम आते थे। कोई भी चीज़ उसका वजन करना है तो उसके लिए स्टोन वेट्स का यूज होता था। और स्टोन वेट्स वर मेड ऑफ अ चेट। चेट एक स्टोन का टाइप है और उसमें से स्टोन वेट्स को बनाया जाता था। देन ये काफ़ी केयरफुली और प्रिसाइजली उसको हम शेप भी देते थे। देन दे वर यूज टू वे प्रीशियस स्टोन्स और मेटल, और मेन यूज क्या होता था, वेइंग करना, वजन करना स्पेशल प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स का। देन बीड्स की बात करें, बीड्स मीन्स माला। मैनी बीड्स वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। Then the stone was cut, shaped and polished, and finally a hole was bored through the center so that a string could be passed through it. So beads की बात करें, beads को हम कहते हैं माला, मोती की माला, और ये कार्नेलियन में से बनाई जाती थी। कार्नेलियन एक ब्यूटीफुल रेड स्टोन था। देन हम बात करें कि इसको काफ़ी एक शेप दिया जाता था, कट करके पॉलिश किया जाता था, जो स्टोन होते हैं रेड स्टोन। देन उसमें एक होल बनाया जाता था। जैसे एक मोती की बात करें पर्ल, इसमें
होल होता है और इस होल में से हम स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। और इसी तरीके से उस टाइम में जो हमें बीड्स मिली थी यहाँ भी ऐसा ही था। द स्टोन वॉज कट, shaped and polished, and finally a hole was bored through the center so that a string could be passed through it. Then stone blades की बात करें, so stone blades were also used by the people in Harappan sites. Then embroidered cloth की बात करें, a stone statue of man wearing an embroidered cloth was found at the Mohenjo-daro. So हमें एम्ब्रॉयडरीड क्लॉथ के एग्जाम्पल मिले हैं। लाइक जो स्टेच्यू था मोहेंजो दरो में, एक पर्सन, एक मैन है, इसके क्लोथ में मीन्स हम देख सकते हैं कि जो उसने क्लोथ पहने हैं इन द स्टेच्यू, वो उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क था। यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑन द क्लोथ। सो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी हुआ करती थी। Then next source it is seals. So the Harappans made seals out of the stone. The seals were generally rectangular in the shape and had an animal carved on them. So seals की बात करें तो stone में से हम seals को बना सकते हैं। In the picture we can see the example of the seals. एंड स्पेशली ये सील्स होते थे, ये रेक्टेंगुलर शेप में होते थे और इसमें एनिमल्स को कार्व किया जाता था। मीन्स एनिमल्स की डिजाइन बनाई जाती थी ऑन द सील्स। देन लास्ट पोटरी। सो हरप्पन मेड पोट्स विद द ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। सो उस टाइम पे पोट्स मीन्स मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। So we can see that Harappan people used objects made of different kind of materials. They used object like stone weights made of jade, beads made of carnelian, blades and seals made of stone and pottery. Then let's move further. So Harappan sites have items made of several metals like gold, silver, copper and bronze. Beads, jade weights, stone seals, pots, spindle balls, blades have been found at these sites. Then stone seals were generally rectangular with an animal carving on them. Then pots often had beautiful black designs on them. Then children may have played with their terracotta toys found at these sites. So craft प्रोडक्शन की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सभी कई सारी प्रीशियस मेटल में से कई सारी आइटम्स को बनाते थे। लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, उसमें से कई सारे प्रेशियस थिंग्स को डेवलप करते थे। देन बीड्स, माला, चैट वेट्स मीन्स जो विंग के लिए यूज होता है। देन स्टोन सील्स, पोर्ट्स, स्पिंडल वॉल्स, ब्लेड्स, ये सभी उस टाइम पे बनाया जाता था बाय द क्राफ्टर। Then, stone seals were generally rectangular with an animal carving on them. Stone seals हमने देखा था वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है और ये एनिमल कार्विंग उसमें हमें देखने को मिलती है। Then pots often had beautiful black designs on them. Then children may have played with terracotta toys found at these sites. So children, ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे चिल्ड्रन टेराकोटा टॉयज से खेलते होंगे क्योंकि हमें टेराकोटा टॉयज के काफ़ी सारे एविडेंस मिले हैं। देन रॉ मटेरियल्स की बात करें, रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन वर ईदर अवेलेबल locally or brought in from distant lands. Like for example, copper from present day Rajasthan in India and Oman in West Asia. Then tin from present day Afghanistan and Iran. Gold from present day Karnataka. Precious stones from present day Gujarat, Afghanistan and Iran. सो रॉ मटेरियल्स की बात करें, कोई भी थिंग को हमें बनाना है, क्राफ्ट करना है, तो हमें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। सो उस टाइम पे कॉपर राजस्थान में अवेलेबल था, जो टीन है ये अफ़गानिस्तान एंड ईरान में अवेलेबल था, गोल्ड है ये कर्नाटका में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल था और प्रेशियस स्टोन्स की बात करें तो गुजरात,
अफगानिस्तान एंड ईरान, उस टाइम पे ये सभी एरियाज पे ये सभी रॉ मटेरियल काफ़ी अच्छी प्रपोर्शन में अवेलेबल थे। देन बीड्स की बात करें तो ये ज्वेलरी एंड प्रीशियस आइटम्स को बनाने के लिए, कॉटन ये क्लॉथिंग एंड ट्रेड एक्टिविटी के लिए, फाइनेंस की बात करें तो ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर द मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। Then let's move to some NCERT question. So, how do archaeologists know that cloth was used in the Harappan civilization? So, actual pieces of the cloth attached to the lid of silver vase or some copper object at the Mohenjo-daro, and spindle walls made of terracotta and faience. So, ये दो एविडेंस है, ये दो रीज़न है, इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता किया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीपल क्लॉथ का यूज़ करते हैं। सो कई ऐसे एविडेंस मिले कि सिल्वर बेस के साथ जो क्लॉथ है उसके पीसेस अटैच हो गए थे। देन कॉपर ऑब्जेक्ट भी मिले, उसके साथ भी जो क्लॉथ है ये अटैच हुआ हमें देखने को मिलता है एट द मोहेंजोदारो। देन स्पिंडल वॉल्स है, ये भी हमें मिले हैं एट द टेराकोटा एंड फेयंस, और इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे क्लोथ्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। देन मैच द फॉलोइंग की बात करें, सो हियर वी कैन सी कॉपर, और इस पे राइट आंसर आएगा राजस्थान, बिकॉज कॉपर वॉज अवेलेबल एट द राजस्थान। देन गोल्ड की बात करें कर्नाटका, टीन की बात करें अफगानिस्तान, एंड प्रेशियस स्टोन्स वर अवेलेबल एट द गुजरात। Then let's move to another question and make a list of the terracotta toys shown in the lesson. Which do you think children would have enjoyed playing with the most? So हमने देखा था कि जो टेराकोटा टॉयज है इससे बॉयज़ और चिल्ड्रन खेलते होंगे। सो उस टाइम पे कौन कौन से टेराकोटा टॉयज हमें मिले होंगे? सो अ कार्ट, अ प्लाव, टॉय एनिमल एंड स्पिंडल वॉल्स, इसके हमें टॉयज टेराकोटा टॉयज मिले हैं, और इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे चिल्ड्रन ये सभी टॉयज से अपना गेम खेल रहे होंगे। Then let's move to practice question 15.4. So describe the craft produced and the work that people in the Harappan civilization did not more than 60 words. So हमें craft production के बारे में लिखना है. So first of all, stone weights made of jade kind of a stone, ornaments and vessels made of gold, beads made out of the carnelian, a red stone, and the stone blades. ये सभी क्राफ्ट प्रोडक्शन के डिफरेंट प्रोड्यूस हमें देखने को मिल रहे हैं, लाइक स्टोन वेट्स, देन ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, देन बीड्स और स्टोन ब्लेड्स, ये सभी एविडेंस हमें मिले हैं। Then let's move to next topic, and it is how people in Harappan civilization got their food. So we have seen early humans hunted animals and gathered plant produce. Gradually they became farmers and herders. When they established cities, they made system to make sure that food reached people in the cities. So, people in the countryside grew crops and reared animals. They supplied food to people in the cities. Then, plant remains suggest that Harappan people grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. So हड़प्पन सिविलाइजेशन में फार्मिंग की बात करें तो अर्ली ह्यूमंस थे, ये सभी एनिमल्स को हंट करते थे और गैदरिंग करते थे प्लांट प्रोड्यूस को। बट धीरे धीरे ये सभी फार्मर्स एंड हर्डर्स बने, और जब भी सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ तो उस टाइम पे फार्मिंग प्रोसेस और फूड गैदरिंग प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट हो गई। लाइक कोई एक पीपल थे जो बाहर के जो फार्म में रहते थे, ये सभी क्रॉप को ग्रो करते थे और रियरिंग ऑफ द एनिमल्स, ये दो एक्टिविटी करते थे, और फूड सप्लाई करते थे इन द सिटीज़ एरिया। ये प्रोसेस होती थी। सभी पीपल फार्मिंग नहीं करते थे,
जो फार्मर होते थे यही फार्मिंग करते थे और फूड को सप्लाई करते थे इन द सिटीज। देन हम बात करें कि पल्सीज, बार्ले, व्हीट, पीस, राइस, सिसेमम, लिनसीड एंड मस्टर्ड उस टाइम पे ये मेन क्रॉप्स होते थे। देन नेक्स्ट बात करें, टॉय मॉडल्स ऑफ प्लाउ हैव बीन फाउंड विच सजेस्ट द यूज ऑफ प्लाउ इन द एग्रीकल्चर। उस टाइम पे हल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हल, तो प्लाउ के मॉडल्स, टॉय मॉडल्स भी हमें मिले थे और इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे प्लाउ मीन्स हल का यूज होता था। Then irrigation may have been used as the areas where Harappan sites lie do not receive much rainfall. Animals reared included cattle, sheep, goats and buffaloes. So इस टाइम पे irrigation facility, water applying facilities भी होती थी in the farm, क्योंकि जब भी रेनफॉल नहीं होगा तो हमें इरिगेशन की ज़रूरत होगी। देन कौन कौन से एनिमल थे जिसका टेमिंग, रियरिंग होता था? कैटल, शीप, गोट्स एंड बफेलोज, ये सभी एनिमल्स थे जिसका रियरिंग होता था। Then last topic of the unit number 1, history. So it is end of the Harappan civilization. So around 3900 years ago, people stopped living in the many of the cities of the Harappan civilization. So first of all, possible causes for the end of the civilization and possible effect of the causes. सो एक बॉक्स पे हमें देखना है कि कौन कौन से रीज़न थे इससे हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ, और नेक्स्ट हमें ये देखना है कि कौन कौन सी इफेक्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। सो ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, और इससे क्या हुआ? नो वाटर सोर्स फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर। सो एक टाइम ऐसा हुआ कि जो रिवर्स थी इसमें पानी ख़त्म हो गया और इससे क्या हुआ कि कोई वाटर सोर्स ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चरल के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए अवेलेबल नहीं था। देन ओवर ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, सो इससे क्या हुआ? लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, इम्पैक्ट ऑन द इकोलॉजिकल बैलेंस। देन फ्लड्स की बात करें, फ्लड से क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। देन लॉस ऑफ कंट्रोल बाय द रूलर्स, इससे क्या हुआ? पीपल माइट हैव फॉट अगेंस्ट ईच अदर। तो ये सभी रीजंस थे एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन के। ड्राइंग अप द रिवर, रिवर खाली हो गई तो ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोसेस में काफ़ी मुश्किल होगी। देन ओवर ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, इससे क्या हुआ? फॉरेस्ट एरिया कम होने लगा। देन फ्लड्स, फ्लड्स के कारण क्या हुआ? पीपल की डेथ होने लगी, मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ रीजन है लॉस ऑफ कंट्रोल बाय द रूलर्स, जो रूलर्स होते थे इसका कंट्रोल अब कम होने लगा और इससे क्या हुआ? पीपल अंदर ही अंदर फाइट करने लगे। So the above reasons do not completely explain the end of the Harappan sites. The sites in Sindh and West Punjab were abandoned and the people began settling towards the east and the south, and new sites emerged around the 1400 years later. So ये सभी reasons एक्चुअल में ये सभी राइट है और रॉन्ग है ये हमें नहीं पता। ये एक गैस किया हुआ है कि ये 4 मेन रीजंस होने चाहिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के। एंड ये सभी भी एविडेंस हमें मिलते हैं कि ये सभी नॉर्थ में से वेस्ट और सॉरी ईस्ट और साउथ की ओर आगे बढ़ने लगे और न्यू सिटीज़ का डेवलपमेंट करते हैं अराउंड 1400 years later. So this is about our chapter number 3 and it is life in the cities. So आज हमने देखा कि किस तरीके से अर्ली ह्यूमंस सिटी ड्वेलर्स बन गए। लाइक जो अर्ली ह्यूमंस थे फार्मिंग एंड हर्डिंग करते थे, बट किस तरीके से सिटी ड्वेलर्स मीन्स सिटीज़ एरिया में रहने लगे, उसके बारे में हमने आज total discussion किया. So I hope you understood very well about all the topics, all the points, and if you have any doubts regarding these topics, you can ask me anytime. So now this is end of the video, our end of the unit number 1. So in the next video we will move further in our syllabus
तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द SA1 एग्ज़ाम। स्टे होम, स्टे सेफ।